दलित जो है वो चाहता है कि वो अपर कास्ट के बराबरी में रहना चाहता है, लेकिन अगर वो अपनी शादी में घोड़े पे चढ़ जाए तो उसको नीचे उतार कर मारा जाता है। वो अपनी शादी में अगर ऑर्केस्ट्रा लाए और बाजा बजा ले तो उसे मारा जाता है। इसका मतलब कि दे आर फोर्स्ड टू लिव एज दे हैव बीन लिविंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो इट मींस दे आर माइनॉरिटी बाय फोर्स, दे आर नॉट माइनॉरिटी बाय चॉइस। इसका मतलब कि माइनॉरिटी बाय चॉइस वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। मान लिया आप हिजाब लगाना चाहते हैं, आप दाढ़ी रखना चाहते हैं, आप टोपी पहनना चाहते हैं, सिख टर्बन रखना चाहता है, कड़ा पहनना चाहता है, क्रिश्चियन क्रॉस पहनना चाहता है, तो ये सब माइनॉरिटी बाय चॉइस है। दिस इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे, whenever we talk of international minority rights day or international human rights day, for example, you will find first of all the first thing is that people start fighting that whether we should use the word observance or celebration. There are many who say that, there is nothing to celebrate in the world if you see the colossal violation of human rights all over. So therefore, why to use the word celebration? Rather, we should say that we can observe Human Rights Day or International Minority Rights Day, because minorities all over the world, they are targeted by the majoritarian democracies. Majoritarianism is a trend that is a global trend, and this is the reason that the minorities are feeling uncomfortable. They are also facing the threats like genocide, their culture, their language, their religious practices, they are being criminalized. This is happening all over the world, and therefore there is nothing to celebrate. So very cautiously people will say that what we have to do, that we have to just observe the International Minority Rights Day. I am not going into that kind of debate whether we should use the term observance or celebration. The day is important. Why? Because this is the day when UN Declaration on the Rights of Minorities was adopted. You see, UN was established in 1945. The Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948 on 10 December. And from 1948 to 1992, this is a long journey. So we had to wait for a long time, and then only this declaration was adopted. Keep in mind, it's a declaration, it is not a covenant or convention. So it doesn't have anything like implementation mechanism. It is only a declaration. So that we should remember. The first question जो आजकल के ज़माने में बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, जो आपके जहन में रहना चाहिए, स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, असातिज़ा ज़्यादातर चीज़ें ये जानते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ माइनॉरिटी, हाउ टू डिफाइन माइनॉरिटी। और आपने टीवी डिस्कशन में सुना होगा, मिसलीड करते हुए इंटेलेक्चुअल्स, सूडो इंटेलेक्चुअल्स को, कभी कभी लीगल फ्रेटर्निटी के भी लोग होते हैं और वो कहते हैं कि माइनॉरिटी नाम की हिंदुस्तान में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि जो 14% है, जो 15% है, जिनकी आबादी 20 करोड़ हो, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकते। तो बाकी तो माइनॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन 20 करोड़ और 22 करोड़ वालों को माइनॉरिटी नहीं कहा जा सकता। पहली बात ये कही जाती है, और इसमें कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि शायद ये बात सही होगी, जितनी इतनी बड़ी आबादी है तो ये माइनॉरिटी कैसे होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंटरनेशनल लॉ में माइनॉरिटी कैसे डिफाइन की गई है और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे माइनॉरिटी को डिफाइन किया है। तो दो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए कि भाई माइनॉरिटी कैसे डिटरमिन होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखिएगा 4 जगह माइनॉरिटीज या माइनॉरिटी यूज किया गया है द टर्म, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The first time, it was in the Kerala Education Bill when the Supreme Court was asked to define what is minority. How to determine minority, because Constitution had not defined what is a minority or how to define minorities, what are the parameters. Constitution only mentions that अगर आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि Constitution recognizes only 2 kinds of minorities in India. That is, number 1, religious minority, and number 2, linguistic minority. Constitutionally, only 2 minorities are recognized in the country. That is, 1 is religious minority, number 2, linguistic minority. So minorities based on language and culture have a right to preserve their language, script and culture. ये बात कही गई आर्टिकल 29 अगर आप पढ़ेंगे तो। So प्रिजर्व क्या करना है आपको?
लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 में ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको राइट है सबसे पहले लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का। अगर आपकी उर्दू मदर टंग है, आपकी पंजाबी मदर टंग है, आपकी तमिल कुछ भी है, तो उसको प्रिजर्व करने का फंडामेंटल राइट। सो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्रिजर्व योर लैंग्वेज। देन स्क्रिप्ट, keep in mind, it is not only language but script is also important. So you have a right to preserve your script as well. That is also a fundamental right granted by the Constitution of India. And then culture, and culture is a broad term, you all know. So for example, if you are wearing hijab, you can insist upon wearing hijab because this is part of your culture, and this is the fundamental right given to all the citizens of India. It is not only for minorities, keep in mind. This is a fundamental right for all the citizens of India. So because article 29 की लैंग्वेज में जो है वो फर्क है और 30 में फर्क है। तो आर्टिकल 29 में क्या है, एनी सेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो एनी सेक्शन में माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब लोग आ जाते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट द राइट टू प्रिजर्व व्हाट वी कॉल लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। तो इसका मतलब कल्चर कंपोनेंट में क्या क्या है, आपके फूड हैबिट, फॉर एग्जांपल व्हाट शुड यू ईट, nobody will determine हमें क्या खाना है। दैट कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आपको क्या खाना है, इसकी चॉइस आपकी होगी, दूसरे डिसाइड नहीं करेंगे। इसलिए कि कल्चर का पार्ट होता है फूड हैबिट भी। आपकी शादी कैसे सोलमनाइज होगी, that will be also, that is also a fundamental right, and all the people have got this right to decide, how to solemnize their marriage. Others will not poke their nose in it. This is the fundamental right. अब जब हम लैंग्वेज और रिलीजन की बुनियाद पे सिर्फ दो तरह से हम माइनॉरिटीज को जब डिटरमिन करते हैं इंडिया में, तो केरला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि माइनॉरिटीज, द माइनॉरिटीज विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिकॉज दैट इज द प्रोविजन इज क्लियर कट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Number 2, the Supreme Court of India also said that what will be the unit of the determination of a minority. So Supreme Court said that states will be the unit to decide whether a section of citizen is minority or not. So for example, Muslims in many states of India, they are in minority. Earlier when Jammu and Kashmir was a state, before the abrogation of Article 370, you will find that the Muslims were majority and others were considered as minority in Jammu and Kashmir because the state was the unit. Similarly, there are 3 Christian majority states, and there you will find others are considered as minorities and the Christians are considered as majority. Similarly, in other states, for example, in Sikh dominated states of Punjab, Hindus and others are considered as minority. So it means Supreme Court of India has already determined that the state will be the unit to determine that who is a minority and who is not a minority. So that is one criteria we have to remember. Third, Supreme Court of India says that, how to determine minority, what will be the position? It should be inferior in number to the majority. So it is only arithmetic calculation is there. If there is a population which is less than 50% of the majority, so that is a minority. इसमें 14% हो या 30% हो या 49% हो even, that is a minority. So that is why when the people are sitting on the TV channels and trying to mislead you, that is, it means they don't know what is constitution. They don't know how the Supreme Court of India has tried to define what is a minority. So that is why you must remember first of all that who is a minority, it has been already a settled law in our country, and that has been determined by the Supreme Court of India itself. And you all know that the final power to interpret the Constitution of India is with the Supreme Court of India. So now any Tom, Dick, Harry sitting on the TV channels cannot say that Muslims are not minority or others are not minority in India. Number 2, you should also remember that besides this, there is also a National Commission for Minorities Act, which was adopted by the Government of India. It's a statutory body in 1992, and the National Commission for Minorities was created.
and it has notified 6 religious minorities in India at the national level. They will be recognized at the national level. They include Muslims, Sikh, Buddhist, Christians, Jains, Parsis. They are recognized for the purpose of the National Commission of Minorities Act. They are recognized at the national level as religious minorities. Now moving further. So in India, when we find it is only, the arithmetic is important. It is the number that is important on the basis of which minority will be determined. You all know, linguistic and religious minority. And the two important provisions we have already discussed. अब यहां से आगे बढ़िए, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे माइनॉरिटीज को डिटरमिन करते हैं. व्हाट इज द सेटल्ड लॉ? इंटरनेशनल लॉ क्या है? Right from the very beginning, you will find there has been a controversy how to define minority. यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ 1945 में. लीग ऑफ नेशंस के जमाने में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग था, यूनाइटेड नेशंस का बहुत ही वीक था. क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास चैलेंजेस दूसरे थे, लीग ऑफ नेशंस के सामने चैलेंजेस दूसरे थे. तो यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में फ्रांसिस्को कैपोतोर्ती को अपॉइंट किया कि एक वर्किंग ग्रुप था और उसका काम यह था कि हाउ टू डिफाइन माइनॉरिटी for the purpose of the implementation of Article 27 of the ICCPR, that is International Covenant on Civil and Political Rights, जिसमें इससे पहले जितने भी प्रोविजंस थे उसमें बात नहीं की गई थी माइनॉरिटीज की. अब आर्टिकल 27 में ये बात की गई इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में कि माइनॉरिटीज को उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर और उनके रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रिजर्व और प्रमोट करने का पूरा राइट होगा और स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी टेरिटरी में रहने वालों को ये प्रमोट करें. तो फ्रांसिस्को कैपोतोर्ती ने जो डेफिनेशन दिया वो इंटरनेशनल लेवल पे यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी समझा जाता है, बिकॉज इट वाज मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज वेल. तो इसलिए इसकी सैंक्टिटी ये है और ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है. उसमें कैपोतोर्ती ने जो फैक्टर्स लिए, सबसे पहले 3 फैक्टर्स हैं जो विजिबल हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, और एक फैक्टर जो है वो इम्प्लिसिट है इसमें. नंबर 1, ही सेज दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स यानी किसी भी कंट्री में रहने वाला जो होगा, अगर वो न्यूमेरिकली इंफीरियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक ग्रुप विच इज यानी न्यूमेरिकली इंफीरियर. तो पहली चीज क्या है? अर्थमेटिक यहां पे लिया गया जैसा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिया है. तो अगर वो न्यूमेरिकली इंफीरियर है उस कंट्री में रहने वाली मेजॉरिटी से, तो वो माइनॉरिटी है. अगर उसकी सबसे पहली बात न्यूमेरिकल इंफीरियरिटी, नंबर 1. नंबर 2, it must be in a non-dominant position. Non-dominant position. Number 2, non-dominant. मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स जब रूल कर रहे थे, अपार्थाइड जब था, तो अल्टीमेटली दे वर इन डोमिनेंट पोजीशन एंड द माइनॉरिटी वाज एक्सप्लॉइटिंग मेजॉरिटी. So that's why they cannot be considered as minority. Whites at that time when blacks were being exploited. So that is why you see that it must be in a non-dominant position. Numerically inferior, number 1. Number 2, non-dominant position. Number 3, it must have distinction, distinctiveness on the ground of religion or language, script, culture, etc. So तीसरी चीज क्या है? Distinctiveness. It must be distinct from the majority. ये 3 चीजें उन्होंने कहा कि जब ये तीनों चीजें किसी सेक्शन पे यानी अप्लाई की जाएंगी तो वो माइनॉरिटी हो. लेकिन चौथी चीज उसमें उन्होंने कहा कि द माइनॉरिटी दैट सेक्शन विच इज न्यूमेरिकली इंफीरियर, नॉन डोमिनेंट एज वेल एज डिस्टिंक्ट, इट मस्ट ऑल्सो हैव अ विल टू प्रिजर्व दैट डिस्टिंक्टिवनेस. यानी उसके अंदर ये विल भी होनी चाहिए कि इट वांट्स टू प्रिजर्व दैट डिस्टिंक्टिवनेस. अब इसको आपको समझने के लिए यानी वो सिर्फ डिस्टिंक्ट ना हो बल्कि अपने डिस्टिंक्शन को कायम रखना चाहता हो. इसको समझने के लिए हिंदुस्तान में आप 2 तरह की माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक माइनॉरिटी बाय चॉइस और दूसरी माइनॉरिटी बाय कंपल्जन या माइनॉरिटी बाय फोर्स. माइनॉरिटी बाय चॉइस जितनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं
आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक एक्साइटिंग डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में जाता है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद यानी 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल में रिकॉग्नाइज कर रहा है। 110 लैंग्वेजेस को रैशनलाइज करके जो लिंग्विस्टिक सर्वे है उसने रिकॉग्नाइज किया है। अब उसकी रोशनी में देखिए आप, तो जो जिस कंट्री में इतनी लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स बोली जाएं, वहां पे आप अंदाजा लगाइए अल्टीमेटली तो माइनॉरिटी बाई चॉइस कौन है, जो अपनी लैंग्वेज कायम रखना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब हिंदी को इंप्लीमेंट करने की बात होती है तो सदर्न इंडियन स्टेट्स, वेस्ट बंगाल और बाकी जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह, वो फॉरन अपोज करते हैं कि नो, वी हैव आवर ओन लैंग्वेज एंड वी हैव एवरी राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट आवर ओन लैंग्वेज। तो अल्टीमेटली वो अपनी लैंग्वेज पे, मिसाल के तौर पे अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। दूसरा, आप अगर देखें तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन पे चलना चाहते हैं हिंदुस्तान में। तो अब अगर आप देखें तो जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो अपनी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करना चाहती हैं और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी इंटैक्ट रखना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि कोई स्टेट इंटरफेरेंस ना हो या मेजॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो। तो इसका मतलब दे आर माइनॉरिटी बाय चॉइस बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर डिस्टिंक्टिवनेस। They don't want to assimilate themselves into the culture of the majority. Assimilation के लिए वो तैयार नहीं है, बट एसिमिलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो इंटीग्रेशन के लिए तैयार नहीं है। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जिसे उर्दू में कहेंगे इंजमाम, तहलील कर देना, यानी आप अपनी तमाम आइडेंटिटी को खत्म करके एक मेजॉरिटी की आइडेंटिटी में अपने आप को अगर जम कर दें तो उसे हम कहेंगे कि एसिमिलेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि यू कैन प्रिजर्व योर ओन आइडेंटिटी, एट द सेम टाइम यू हैव अ फीलिंग ऑफ शेयरिंग मेनी थिंग्स कॉमन एट द नेशनल लेवल बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। तो ये एक जो फीलिंग होती है उसको कहते हैं, ये इंटीग्रेशन की तरफ कोशिश होती है। बट इंटीग्रेशन डजंट मीन दैट यू शुड डिस्ट्रॉय। इंटीग्रेशन नेवर कॉल्स फॉर होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब नहीं होता है या यूनिफॉर्म सब कुछ हो जाए, ये मतलब नहीं होता है। सो अल्टीमेटली इसका मतलब कि माइनॉरिटी बाय चॉइस वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। मान लिया आप हिजाब लगाना चाहते हैं, आप दाढ़ी रखना चाहते हैं, आप टोपी पहनना चाहते हैं, सिख टर्बन रखना चाहता है, कड़ा पहनना चाहता है, क्रिश्चियन क्रॉस पहनना चाहता है, तो ये सब माइनॉरिटी बाय चॉइस है। बट इन इंडिया यू हैव अ वेरी पिक्यूलियर फीचर दैट वी ऑल्सो हैव माइनॉरिटी बाय फोर्स और माइनॉरिटी बाय कंपल्जन। फॉर एग्जाम्पल दलित्स इन इंडिया, दलित जो है वो चाहता है कि वो अपर कास्ट के बराबरी में रहना चाहता है, लेकिन अगर वो अपनी शादी में घोड़े पे चढ़ जाए तो उसको नीचे उतार कर मारा जाता है। वो अपनी शादी में अगर ऑर्केस्ट्रा लाए और बाजा बजा ले तो उसे मारा जाता है। इसका मतलब कि दे आर फोर्स्ड टू लिव एज दे हैव बीन लिविंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो इट मींस दे आर माइनॉरिटी बाय फोर्स, दे आर नॉट माइनॉरिटी बाय चॉइस, because they don't want to preserve that identity which have been imposed upon them by the majority or by the dominant section, not by the majority number, by the dominant section of the society. They don't want to have this because they were considered as untouchables earlier, former untouchables hai wo. So they are minority by force, minority by compulsion. अब आप समझ जाइए कि why this is very important, that will to preserve your identity is also important. will होनी चाहिए preserve करने। अब ये बात आपको क्लियर हो गई, मैं स्टूडेंट्स के लिए खास करके कह रहा हूं, आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई। अब जब यहां से आप आगे बढ़ते हैं तो अगली बात आती है जो एक लेफ्ट लिबरल पोजीशन है। आपने अक्सर देखा होगा अलीगढ़ में भी कुछ लोग ये पोजीशन लेते हैं, और लेफ्ट लिबरल पोजीशन, और अलीगढ़ में भी मैंने कुछ लोगों को, टीचर्स को देखा है जो बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल कैंप को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए ये भी तो साउंड करना होता है ना कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब कि हम अपनी कम्युनिटी से, अपने तमाम लोगों से अलग होकर के हम सोचते हैं। ये भी एक फैशन होता है कुछ लोगों का पढ़े लिखे कहलाने के लिए। तो ये एक लेफ्ट लिबरल पोजीशन, वो कहते हैं कि आइडेंटिटी के इश्यूज को मुसलमान बहुत यानी आगे तक ले जाते हैं। मदरसे की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें, और यानी अपने जो इश्यूज हैं उसको उसी में सॉल्व करने की बातें, या उलमा का जो पूरा एक मामला है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म आप देखिएगा, जो मॉडर्न एजुकेशन के लोग हैं, ये बातें की जाती है आइडेंटिटी पे बहुत, कि आइडेंटिटी पे क्यों इतना आप जोर देते हैं। तो आप ये याद रखिए
कि माइनॉरिटीज की जितनी इंटरनेशनल अगर पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे तो सबसे पहले जो बात की जाती है माइनॉरिटी की, वो उनकी आइडेंटिटी की बात की जाती है। आइडेंटिटी की तो प्रॉब्लम है। अगर माइनॉरिटी अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व ना करे और असिमिलेट हो जाए मेजॉरिटी में तो कोई बात ही नहीं है। फिर मसला कहां रह जाएगा? तो ये यानी इतनी इडियोटिक बात है अपने आप में जब ये कहें कि आइडेंटिटी को असर्ट करता है। माइनॉरिटी करेंगी आइडेंटिटी को असर्ट, तभी तो माइनॉरिटी है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो आपसे ये कहता है कि आइडेंटिटी को क्यों असर्ट करते हैं, नहीं, आइडेंटिटी भी असर्ट करेंगे, सोशल जस्टिस की भी बात करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। माइनॉरिटीज को सब राइट दिया गया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये जो यूएन डिक्लेरेशन है, इसका नाम है डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू नेशनल और इथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन 18 दिसंबर 1992। अब इसमें देखिए बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन कुछ बहुत ही प्रिएम्बल इसका एक बड़ा सा है। मैं ये कॉपी देके जाऊंगा, आप सब लोग चाहें तो जेरोक्स भी ले सकते हैं यहां से। तो देखिए इसमें जो मैं इसका थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिक्लेरेशन में तो 9 आर्टिकल्स हैं, उसमें 8 आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही अहम होंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि डिजायरिंग टू प्रमोट द रियलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन द चार्टर, दैट इज चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन यूडीएचआर जिसको हम कहते हैं। ये दो यानी यूएन चार्टर फाइल है, फिर उसके बाद से दूसरा क्या आ गया, यूडीएचआर, सारे प्रोविजंस, आर्टिकल 30 के पूरे प्रोविजन, उसमें 30 आर्टिकल्स हैं। अब उसके बाद से द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, याद रखिए क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इंडिया उसका पार्टी है, पार्टी टू दिस कन्वेंशन। वी हैव साइंड इट, वी हैव रेटिफाइड इट, है ना। Then the International Covenant on the Elimination of all forms of racial discrimination, माइनॉरिटी राइट्स को आप इस यानी कन्वेंशन जो है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना माइनॉरिटी राइट्स को। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके आर्टिकल 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी इकोनॉमिक इनजस्टिस भी अगर आपके खिलाफ हो रहा है, इकोनॉमिक बाइकआउट का कॉल दिया जा रहा है, ठेले पे कहा जा रहा है नाम लिखिए, ये सब वायलेशन है इस पूरे इसका। The declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, discrimination अगर इस ग्राउंड पे होता है, and the convention on the rights of the child as well as other relevant international instruments that have been adopted at the universal or regional, not only universal or regional level, and those concluded between individual states members of the United Nations, ये सब साइट किया जाएगा, नॉट ओनली दिस डिक्लेरेशन। उसके बाद से जो इसके कुछ प्रोविजंस हैं। अब देखिए क्यों आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आइडेंटिटी की बात की गई। इसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है, ये यूएन डिक्लेरेशन जो है इसका आर्टिकल 1 कहता है स्टेट शैल प्रोटेक्ट, स्टेट शैल कहा गया है, इसका मतलब स्टेट मस्ट। जब लॉ में शैल कहा जाए तो इसका मतलब मस्ट होता है। तो स्टेट, आप इसको इस तरह से पढ़िए, स्टेट शैल, और आप समझ सकते हैं स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity, याद रखिए प्रिजर्व करने की बात कर रहा है ये। द स्टेट शैल, यानी जिम्मेदारी ये हमारी नहीं है, इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की, स्टेट्स का मतलब कंट्रीज की जिम्मेदारी है। ये डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस का ये कह रहा है सारी कंट्रीज की ये जिम्मेदारी है कि दे मस्ट प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड द नेशनल और इथनिक, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity. Yani the conditions should be created for the promotion of that identity. Conditions should not be created where you are trying to, sometimes you are forced to conceal your identity because you will be discriminated against. इसका मतलब यही है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाने पे मजबूर ना हो जाएं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को, यानी आपकी आइडेंटिटी कायम रहे, उसको प्रमोट करना, उसके लिए कंडीशन कंड्यूसिव बनाना स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट शैल अडॉप्ट एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव एंड अदर मेजर्स टू अचीव दोज एंड्स। लेजिस्लेटिव
एंड अदर मेजर्स, यानी कानून भी बनाना है और अदर मेजर्स भी लेने हैं, ताकि ये जो आइडेंटिटी है जिसमें लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ऑल, ये सब कायम रह सके। आर्टिकल 2 इसका कहता है पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और इथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एंजॉय देयर ओन कल्चर, टू प्रोफेस एंड practice their own religion, and to use their own language in private and in public freely and without interference of any form of discrimination. आपसे अगर ये कहा जाए कि साहब आप उर्दू में पेपर नहीं लिख सकते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, वायलेशन है इसका प्रिंसिपल का। आपसे कहा जाए तमिल में नहीं लिख सकते हैं, बंगाली में नहीं लिख सकते हैं, ये वायलेशन है। Article 3, persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and where appropriate regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live in a manner not incompatible with national legislation. Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain their own associations. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain without any discrimination free and peaceful contacts with other members of their group and with persons belonging to other minorities, as well as contacts across frontiers, beyond borders, across frontiers with citizens and other states to whom they are related by national or ethnic, religious or linguistic ties. याद रखें आप, practices जो भी हो, but you have every right to maintain relations with the people belonging to your religion or speaking your language, or if they are having the same kind of cultural practices, all these things are there. Article 3 कहता है कि persons belonging to minorities may exercise their rights including those set forth in the present declaration individually as well as in community with other members of their group without any discrimination. These kind of provisions you will find. इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसमें किस चीज पे जोर दे रहा है? आइडेंटिटी पे। तो ये जो लेफ्ट लिबरल पोजीशन आपके सामने ली जाती है कि मुस्लिम्स या सिख या क्रिश्चियंस या अदर्स क्यों इतना आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनेशनल माइनॉरिटी jurisprudence. They don't know about this declaration, they don't know about the convention and the covenant that have been developed under the aegis of the United Nations. And keep in mind, when I am talking about the United Nations, it's a body that is representing the collective wisdom of all mankind. 193 member states are sitting together and finally they are deciding what is to be done. So it means that the collective wisdom of all the nations of the world, or collective wisdom of 193 nations of the world, is being challenged by some individuals. So that is it cannot be defended on intellectually and morally respectable ground, this kind of position. So therefore, assertion of your linguistic identity, religious identity, cultural identity is your fundamental right, and it is also a right recognized in the international law. And therefore, you should never feel ashamed when you are trying to assert your identity.